अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुजरिम कौन और मेरा नाम है सबीउल हसन खान। ईद के दूसरे रोज़ थाना रोशनवाला की हदूद में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां लोगों के एक जत्थे ने मुसल्ला होके एक घर के बाहर खड़े हुए लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में एक खातून जाँ बहक हुई और 2 अफराद ज़ख्मी हुए। ये वाक़या क्यों पेश आया और अब तक इस पे कार्रवाई क्या हुई है, मुल्ज़िमान क्यों इतनी दीदा दलेरी से ये सब कुछ करते रहे, ये हम जानेंगे SHO साहब से। और मुद्दईयान के साथ क्या कुछ हुआ, क्या इस वाक़े के पीछे था, क्यों इतनी गर्मी हुई, इतना गुस्सा आया इन मुल्ज़िमान को, जिसकी वजह से ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें खातून की जान गई, 2 अफराद ज़ख्मी हुए। आइए प्रोग्राम शुरू करते हैं और पहले FIR के जो मुद्दई हैं या इस केस की जो पैरवी कर रहे हैं उनसे हम बात करते हैं। इस FIR के मुद्दई हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं कहाँ वो रहते हैं, किस तरह से ये वाक़या पेश आया, क्या मुल्ज़िमान को ये पहले से भी जानते हैं, पहले भी मुल्ज़िमान की तरफ से कोई धमकियाँ मिलती रहीं। अब ये हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करते हैं। जी की ना जी ਤੁਹਾਡਾ? मज़हर इकबाल जी। ਮਜ਼ਹਰ भाई कित्थे रहंदे हो तुसीं? ਅਸੀਂ 235 ਨਿਆਮੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਨਿਆਮੋਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਆਮੋਂ ਨੇ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 50-60 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ। ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰਕਬਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੈਗੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਜੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਰਾਜਗੀਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਰਾਜਗੀਰੀ ਕਰਦੇ ਅੱਛਾ, ਜੀ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਕੀ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਉਸ ਸਰ ਜੀ ਵਾਕਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ 10-15 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਾਲਿਦ ਨੇ ਤੱਲੀ, ਇਹਨੇ ਕਾਰ ਸੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਦੇ ਕਾਰ ਇਹ ਵੱਜਿਆ। ਠੀਕ ਆ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਟੱਕਰ ਲੱਗੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਾ ਪਾਪੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਗੜ ਰਗੜ ਆ ਗਈ ਆ। ਅੱਛਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਬੇਟਾ? ਚਾਚੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੂਜੇ ਕਾਰ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀ ਪਿਸਟਲ 2-3। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਗੂਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਗਾਲਾਂ ਗੂਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥਪੇੜਾ ਮਾਰੀਆਂ। ਥਪੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਭਾਈ ਆਇਆ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹਮਸਾਇਆ ਹੈਗਾ ਮੁਹੰਮਦ ਕਰਾਮ ਤੀਰੋਗਾ ਖਰਲ, ਉਹ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਯਾਰ ਤੂੰ ਦਫਾ ਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਣ ਤਰੋੜ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕੱਢਿਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਗੱਡੀ ਵੱਜਣ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ ਹੋਇਆ ਜੀ 12:30 ਵਜੇ ਦਾ ਵਾਕਿਆ। ਦੁਪਹਿਰੇ 12:30 ਪੌਣੇ 1 ਜਾਂ 1 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ। ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 2 ਫੜਿਆ। ਤਕਰੀਬਨ 7-8 ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਦ ਹੈਗਾ, ਖਾਲਿਦ ਦੱਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਉਮਰ ਦਰਾਜ਼ ਹੈਗਾ ਜੋਕਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਫੰਨਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਅਸਲ ਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ੇਰਯਾਰ ਖਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬਨੋਈ ਸੀ ਖੜਾ ਸੀ 5 ਦੇ ਘਰ। ਉਹ ਬਨੋਈ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਉਮਰ ਦਰਾਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਸੱਜੇ ਲਾਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਅਸੀਂ ਨੱਸ ਕੇ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨੱਸ ਕੇ ਆਏ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਸੀ ਨਾਲ, ਛੋਟੀ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨੱਸ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੇਰੀ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰਿਆ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਤੱਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਖਾਲਿਦ ਤੱਲੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰਿਆ। ਉਹਨੇ ਫੈਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਰਨ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਆ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੈਰ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਫੈਰ ਲੱਗਾ ਮਾਰਿਆ ਜੀ ਦੂਜੇ ਨੇ, ਫੰਨੇ ਨੇ, ਸ਼ੇਰਯਾਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਅਸਲਾ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਪਿਸਟਲ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ 4-5 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਅਸਲਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਰਨ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੀ ਘਰ ਦੀ ਡਿੱਗ ਗਈ, ਉਹ ਤੇ ਫੌਰਨ ਹੀ ਨਾ ਦੁਆ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਜਦੋਂ ਫੈਰ ਲੱਗਾ ਨਾ ਤੱਲੀ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਖੂਨ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਾ। ਉਹ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਫੈਰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਆ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਬੱਚੀ ਇੱਕ ਹੈ ਜੀ, 7 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਵਾਕਿਆ ਇਹ ਹੋਇਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹਿਨੋਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰ ਮਾਰਿਆ? ਖੜਾ ਸੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਭਾਂਜੇ ਦੇ ਘਰ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੌਲਾ ਬਣਿਆ, ਪਰੂ ਆਇਆ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀ, ਚਲੇ ਗਈ ਸੀ ਘਰ। ਪਰੂ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਇਆ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 4-5 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਬਨੋਈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਗਾਲਾਂ ਗੂਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨ, ਹਵਾਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬਨੋਈ, ਉਹਦੇ ਜੀ ਨਾ ਇਸ ਲੱਤ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਫਾਇਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਬਨੋਈ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਹਾਂਜੀ ਖੱਬੀ ਲੱਤ, ਜਦੋਂ ਸੱਜੀ ਲੱਤ ਜਦੋਂ ਬਨੋਈ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਲੱਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਾਵਤ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾਵਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ।
ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਰਤੀ ਜੀ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਨੋਈ ਜਦੋਂ ਫਾਇਰ ਲੱਗਾ ਅਸੀਂ ਨੱਸ ਕੇ ਆਏ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਫਾਇਰ ਮਾਰਿਆ ਦੱਲੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਖਾਲਿਦ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਫੰਨਾ ਸ਼ੇਰ ਯਾਰ ਖਾਨ, ਉਹਨੇ ਫਾਇਰ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਾਰਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਸ਼ ਰਹੀ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਾ ਮਾਸੀ ਯਾਰਾਂ ਬਾਈ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਯਾਰਾਂ ਬਾਈ ਆਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦਾਜ਼ਾ? ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਆਇਆ? ਹੋਸ਼ ਤਕਰੀਬਨ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ 3-4 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 3-4 ਵਜੇ ਹੋਸ਼ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਹੋਸ਼ ਆਇਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਸੀ, ਬਲਾਦਰੀ ਸੀ ਸਾਰੀ ਆਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਥਾਣੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਥਾਣੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਧਰ ਭੇਜਿਆ ਡਿਸਕੋਡ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ कुछ कार्रवाई की अपनी। हाँ जी। मज़र है, मुदई है इस FIR का, इसकी गुफ्तगू आपने सुनी है। ये बताता है कि न्यामो आना जो गांव है वहाँ पे ये मतलब पैदाइशी वहीं का है, रिहाइश इनकी वहीं है, इनके आबाओ अजदाद वहीं पे थे, मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालता है। और ईद के दूसरे दिन ये वाक़या पेश आता है कि इसका भांजा जो है वो उसका कहीं से गुज़र होता है। मुलज़मान भी वहाँ से गुज़र रहे होते हैं। भांजा इसका मोटरसाइकिल पे होता है, मुलज़मान गाड़ी पे होते हैं। और एक हल्का सा एक एक्सीडेंट होता है जिसके नतीजे में गाड़ी का कोई मामूली नुकसान होता है, जिसके बाद तलख कलामी होती है। तलख कलामी के बाद वक्ती तौर पे मामला जो है वो रफ़ा दफ़ा हो जाता है। वहाँ पे मौजूद जो लोग हैं वो इस मामले को सेटल करवा देते हैं। थोड़ी ही देर बाद मुलज़मान मोटरसाइकिल पे सवार आतिशी असलहा अपने साथ लिए बाकायदा वेपन हो के ये लोग धावा बोलते हैं जो जिसकी बाइक के साथ ये टक्कर हुई होती है उसके घर पे। तो वहाँ पे इनके जो बहनोई हैं उनको एक गोली लगती है उनकी दाईं टांग पे। वो गोली लगने के बाद मजरूब होते हैं। ये भी घर से बाहर निकलते हैं देखने के लिए कि आखिर मामला क्या है, क्यों ये सारा ये सब कुछ हुआ है, किस तरह का ये शोर है। ये मज़र इनकी जो मतवफ़िया बीवी हैं मकतूला, वो इनके हमरा होती हैं। मुलज़मान इन पे भी फायरिंग कर देते हैं, जिसके नतीजे में एक गोली लगती है मकतूला को और मकतूला मौके पे उसकी डेथ हो जाती है, जहाँ भाग हो जाती हैं। और एक गोली इन्हें लगी, वो गोली लगने के बाद फ़ौरी तौर पे इन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ कुछ वक्त के लिए ये बेहोश रहे। नीम बेहोशी की हालत में ही फिर इन्हें बताया गया कि इनकी बीवी अब इस दुनिया में नहीं रही। फिर ये वहीं से हॉस्पिटल से ऑल द वे थाने आते हैं और थाना आके रपट दर्ज करवाते हैं अपनी FIR। और फिर उसके बाद क्या होता है ये भी हम इनसे जानते हैं कि मुलज़मान को कितनी देर बाद पुलिस जो है वो ट्रेस करती है। पुलिस तुसी FIR करवाते हो आके फ़ौरन रिस्पॉन्ड करती है पुलिस? हाँ जी, फ़ौरन करती है। अच्छा, कितनी देर बाद मुलज़मान फड़े जाते हैं? मुलज़मान ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਫੜੇ ਗਏ ਜੀ। अच्छा, दूजे दिन मुलज़मान फड़े जाते हैं। 2 ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਫੜੇ ਗਏ ਜੀ। अच्छा, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਗਏ ਜੀ। ਮੇਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਰ ਕਰਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਗਏ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਫੜੇ ਗਏ 2 ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਐ ਸਨ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਫੜੇ ਗਏ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਮੁਤਮਿਨ ਹੈ ਜੀ, ਮੁਤਮਿਨ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਤਮਿਨ ਹੈ ਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜੀ SHO ਦੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਤਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਮੁਤਮਿਨ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ FIR ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਉਵੇਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਰਿਟ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ? ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਉਹ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਧਮਕੀਆਂ ਕੌਣ ਦੇ ਰਹੇ? ਇਹ ਜੀ ਖਾਲਿਦ ਹੋਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ 2-3 ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਾਣਾ। 302 ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ 302 ਹੋਰ ਲਵਾਉਣੀ। ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਹੋਰ 2-3 ਮਾਰਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਹੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ। ਨਹੀਂ, ਧਮਕੀਆਂ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚਲੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਰ 2 ਮਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪੇਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਪਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। 302 ਲੱਗ ਗਈ, 302 ਹੋਰ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ। मज़र ये कह रहा है कि पुलिस ने अपनी कार्रवाई तो की, फ़ौरी तौर पे FIR का इंदराज जिस तरह से ये चाह रहे थे उसी तरह से वही दफ़ात हुई, उसी तरह से उन्हीं लोगों को चार्ज किया गया जो इनके असल मुलज़मान थे।
और फिर फौरी तौर पे पुलिस कार्रवाई करते हुए कुछ मुलज़मान को गिरफ़्तार भी करती है, जबकि मेन जो मुलज़मान हैं वो अभी तक मफरूर हैं। पुलिस से इस बारे में जब जानेंगे, उनसे पूछेंगे कि वो जो असल जो मेन फ़ायर करने वाला खालिद उर्फ धल्ली है और दूसरे उसके साथ उमर दराज है, ये कब तक ये लोग गिरफ़्तार हो जाएंगे। और फिर एक और बड़ी परेशान कुन बात ये है कि वो लोग इन्हें धमकियाँ दे रहे हैं, और धमकियाँ ये दे रहे हैं कि FIR तो जो हम पे होनी थी वो हो गई जो हमारे साथ, लेकिन अब हम मज़ीद इनका नुकसान करेंगे। डरा धमका रहे हैं कि एक तो इनका नुकसान हो गया और फिर इन्हें इस बात के लिए मजबूर किया जा रहा है कि इस पे कार्रवाई भी ना की जाए। बिल्कुल जो उन्होंने किया है इस पे उन्हें खुला छोड़ दिया जाए और छुट्टी दे दी जाए, वो जो मर्ज़ी करें। कुछ लोग वहाँ पे मौजूद थे जब ये वाक़या हो रहा था, कुछ ऐनी शाहिदीन भी थे, अहले दे वहाँ पे मौजूद थे, वो भी हमारे साथ हैं। उनसे भी हम बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि उन्होंने उस दिन क्या देखा, क्या ये असल में माजरा हुआ है, और ये जो जिन लोगों ने ये सब कुछ किया है इनका पहले भी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, गांव में पहले भी ये लोग वारदातें कर चुके हैं। अहले दे उनके बारे में क्या कहते हैं, उन्हीं से जानते हैं। कुछ और लोग, जैसा कि मैंने बताया आपको, कि वहाँ पे मौजूद थे, और ज़ाहिर सी बात है पहले फ़ायर एक और शख्स को लगा जो कि इनके बहनोई हैं मज़र के, जिनको देखने के लिए ये वहाँ पे पहुँचे हैं अपनी बीवी के हमरा। वहाँ कुछ ऐनी शाहिदीन भी मौजूद थे। इस वक्त वो जो दूसरे शख्स हैं जिनको फ़ायर लगा है, मजरूम हैं जो दूसरे, उनके भाई हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बात करते हैं। जी की ना जी ਤੁਹਾਡਾ? जी मेरा नाम शौकत अली। अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਨਿਆਮੋ ਹੋਣੇ जी बिल्कुल साड़ी उत्थे रहायश है। ਉੱਥੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ। ਕੀ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀ ਹੈ? जी हमारा कारोबार ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੇ ਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 30-40 ਫੁੱਟ ਤੇ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਵਕੂਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕੂਏ ਨੂੰ ਉਮਰ ਦਰਾਜ਼ ਦੀ ਕਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਦਾ ਭਾਈ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਕੀ ਉਮਰ ਕੀ ਉਹਦੀ ਬੱਚੇ ਦੀ? ਉਹ ਬੁੱਢੇ ਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ 12-14 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਜਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰਾਇਆ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਖਰਚਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਸ ਵਕਤ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਚੰਦ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਖਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਵੇਖਿਆ 10-12 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ, 10-12 ਮਿੰਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਆ ਗਏ? ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬਾਂਝੇ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਧਰੋਂ ਈਦ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਨਾ, ਵੀ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਆਇਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾ ਫਾਇਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ, ਉਮਰ ਦਰਾਜ਼ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਰ ਮਾਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਦੌੜੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਰਸ਼ ਪਾਉਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸੀ ਨਾ 5-7, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਲਿਦ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਲੈਸ਼ਨਕੋਵ ਪਈ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਾਲੀ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਕਜ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਫੰਨਾ, ਉਹਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦਾ ਉਹ ਸਾਡੂ ਸੀ ਬਹਿਨੋਈ, ਉਹ ਮਦਰ, ਉਹਨੂੰ ਐ ਲੱਗ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੱਧਾ ਦੋਨ ਫਾਇਰ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਫਿਰ ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਛੱਡੀਆਂ, ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੇ ਪਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਨਿਕਲ ਗਏ ਉੱਥੋਂ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਜਿਆ ਉਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਜੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਉੱਥੇ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਿਓ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇੜੇ ਲੈ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ। ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਹਨ ਆਦੀ ਮੁਜਰਮ, ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਵਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫੇਲ ਗੰਦਾ ਕਰਨ, ਚੰਗਾ ਕਰਨ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲ ਨਾ ਸਕਣ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦਾ ਉਹ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਗਈ ਹੱਡੀ, ਤੇ ਉਹ ਦੂਜੀ ਉਹਦੀ ਸਾਲੀ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ,
ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਇਲਤਜਾ ਕਰਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾਦਰਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਾਡਾ ਹੀ ਆ कि ਸਾਨੂੰ हक साडा मिलिया जाए। हक यकीनी तौर पे तो मिल सी जी। गुफ्तगू आपने सुनी, ये मंजूर हैं, इनका ये कहना है कि मेरे भाई जो हैं वो मजरूब हैं, इन्हीं के भाई, छोटे भाई नहीं जी थोड़े, हाँ मेरे छोटे, इनसे छोटे भाई हैं, वो मजरूब हैं इस वाक़े में। उस दिन जब ये मामूली एक एक्सीडेंट होता है, ये भी वहाँ पे मौजूद होते हैं और मामला रफ़ा दफ़ा करवाते हैं कि ये छोड़ दें, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जिसको लेके इतना झगड़ा किया जाए या एक दूसरे का नुकसान मज़ीद किया जाए। ये मामला रफ़ा दफ़ा होने के बाद ये अपने घर आ जाते हैं। ईद का दूसरा दिन था, मेहमान हैं, बच्चे हैं घर में, और फिर एकदम से शोर सुनाई देता है। शोर में ये भी भाग के बाहर निकलते हैं। जब बाहर निकलते हैं तो उनके भाई को एक गोली, जो इरफान नामी शख्स है जी, खालिद नहीं जी नहीं जी, ਉਹ ਜੀ ਦੂਰਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬਾਈ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਨਾ, ਖਾਲਿਦ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਰੀ ਦੂਸਰੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ, ठीक है, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਾਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਨਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹ ਉਮਰ ਦਰਾਜ਼, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਈ ਨੂੰ ਮਾਰੀ। उमर दराज नामी शख्स जो है वो इनके भाई को पे फायरिंग करता है और एक गोली उनकी टांग में लगती है, जिसकी वजह से खून बहना शुरू हो जाता है। ये फ़ौरी तौर पे अपने भाई को संभाल ही रहे होते हैं कि अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो जाती है। उस दौरान कुछ समझ नहीं आता इन्हें कि क्या करें, किस तरह से अपनी जान बचाएं, किस तरह से इस सारी सिचुएशन को टैकल किया जाए। फिर जब फायरिंग थमती है, फायरिंग का ये सिलसिला, तो ये मुलज़िमान वहाँ से फ़रार हो जाते हैं। मुलज़िमान फ़रार होते हैं वहाँ से, ये अपने लोगों को संभालते हैं और मालूम होता है कि सिर्फ उमर दराज़ी को गोली नहीं लगी, दो और लोगों को भी गोलियाँ लगी हैं, जिनमें वो मकतूला खातून और दूसरे जो इस FIR के मुद्दई हैं मज़र, उनको एक गोली लगती है। थोड़ी देर में मालूम इन्हें होता है कि जिन खातून को ये गोली लगी है वो अब इस दुनिया से जा चुकी हैं, कत्ल हो चुका है उनका, जबकि दीगर ये अपने दूसरे मजरूब जो होते हैं उन्हें संभालते हैं, हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद पुलिस को इत्तला दी जाती है। पुलिस फ़ौरी तौर पे एक्शन में आती है, कार्रवाई करती है और उन मुलज़िमान में से चंद मुलज़िमान जिन्हें गिरफ़्तार कर लिया जाता है, और बाकी मुलज़िमान अभी पुलिस से बात करेंगे कि उनसे मुतालिक अब तक क्या कुछ किया है, क्या कार्रवाई की है, कितनी देर में उन मुलज़िमान को भी गिरफ़्तार किया जाएगा। क्योंकि जब हमारी मज़र से बात हो रही थी तो वो बता रहा था कि मुलज़िमान संगीन नताइज की धमकियाँ दे रहे हैं कि ये लोग इस केस से पीछे हट जाएं। कुछ हैनी शाहिदीन वहाँ पे मौजूद थे जब ये सारा वाक़या हो रहा था। दोनों वाक़यात मुख्तलिफ हैं, थोड़े ही वक्फ़े के दौरान ये सब कुछ हुआ है। कोई आधे पौने घंटे के दौरान ही ये मामला इतना बिगड़ा है जिसके नतीजे में एक कत्ल हुआ और 2 लोग इस वक्त ज़ख्मी हैं। एक और ऐनी शायद है, इनसे हम बात करते हैं। जी क्या नाम है जी आपका? ਨਸੀਰ ਅਹਿਮਦ ਨਸੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਸ਼ੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮੁਦਈਆਂ ਨੂੰ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਨੂੰ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ? ਮੁਦਈ ਸਰ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਭਤੀਜਾ? ਭਤੀਜਾ ਮੇਰਾ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਜਦੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰਚਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਸਰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਫੌਰਨ ਪਿਸਟਲ ਕੱਢਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨਾ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਪਿਸਟਲ ਕੱਢਿਆ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਰ ਜੀ ਉਹਨੇ ਪਿਸਟਲ ਕੱਢਿਆ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਉਮਰ ਦਰਾਜ਼ ਨੇ। ਉਮਰ ਦਰਾਜ਼ ਜੀ ਉਮਰ ਦਰਾਜ਼ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਮੌਜੂਦ ਸਨ? ਉਮਰ ਦਰਾਜ਼ ਉਮਰ ਦਰਾਜ਼ ਸੀ, ਦੱਲੀ ਸੀਗਾ, ਖਾਲਿਦ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਜ਼ਮਾਨ ਸੀਗਾ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕਈ ਲੋਕ ਹਨ ਕਿ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਲੈ ਲਾ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਰਾਹਗੀਰ ਸੀ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ, ਬੱਚਾ ਹੈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਖਰਚਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਪੈਣਗੇ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆਗਾ ਤੇ ਗਲਤੀ ਵੀ ਤੇਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਕੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨਾ ਬਿਆਨ 'ਚ ਉਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨਾ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਆਵਾਮ ਪਈ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਕੇ ਕਾਰ ਆਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਰ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇੰਤਹਾ ਕੀਤੀ, ਘਰ ਆ ਕੇ ਤੋੜ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲਾ ਫਾਇਰ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਫਾਇਰ ਜੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਲੱਗਾ ਚਾਚੇ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਲੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਸਰਾ ਫਾਇਰ ਮੇਰਾ ਉਹ ਭਤੀਜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾ ਫਾਇਰ ਉਮਰ ਦਰਾਜ਼ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਲੱਤ 'ਚ ਲੱਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਫਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਲੀ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਖਾਲਿਦ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਾ, ਕੁੜੀ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਤੀਸਰਾ ਫਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਇਸ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਬਾਜ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਤਹਾ ਉਹਨਾਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਦੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਰੈਸਕਿਊ 112 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਕਾਲ, ਉਹ ਆਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜ਼ੀਦ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਖਾਲਿਦ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵਕੂਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕੂਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ਖਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਖਾਲਿਦ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਨਾ ਪਰਚਾ ਵੇਖ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਈਂ। ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਵਕੂਏ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣ, ਮੌਕਾ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣ, ਡੇਟਾ ਕਢਾ ਲੈਣ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਚਾ ਵੇਖ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਈਂ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਦਮ ਨਾ ਉਠਾਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਵੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਅੱਛਾ, ਜੀ। ਇਹ ਧਮਕੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਿੱਤੀ ਮੈਨੂੰ ਖਾ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਨਾ ਫੌਰਨ ਮੋਬਾਈਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕੀ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮਜ਼ੀਦ 2 ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਸ ਤੇ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ FIR ਵਾਪਸ ਲਓ, ਪਰਚਾ ਵਾਪਸ ਲਓ, ਤਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ 3-4 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਮਾਰਨੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਖਾਲਿਦ ਉਰਫ ਦਲੀ ਨੇ ਉੱਤੇ ਉਮਰ ਦਰਾਜ਼ ਨੇ, ਇਹ ਸਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੈ ਇਤਮੀਨਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਫੜ ਲੈਣਗੇ? ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਤਮਿਨ ਹੈਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਦਾਦ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮੁਤਮਿਨ ਹਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਸਿਰਫ ਦਾਦ ਰਸੀ ਤਫਜ਼ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਤਫਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਮੁਤਮਿਨ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ, ਕਦੀ ਮੂੰਹ ਮਾਰੀ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ? ਸਾਡੀ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜਾਈ। ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਆਬਾਦ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਸ਼ੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਦਾਦੀ ਹੋਈ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਣਗੇ। ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਡਕੈਤ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਚੋਰ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰੀਫ ਲੋਕ हैं, अपनी मजदूरी करने हैं, अपनी मजदूरी करने हैं जी। उस तो बाद ये सर जी ने बहुत ज़्यादती जुल्म किया है, इंतहा जुल्म किया है, इस तो ये भी कर रहे हैं। बिल्कुल सही। गुफ्तगू आप सुन चुके हैं इनकी, और बारहा यही मुतालबा है कि जो दीगर मुलज़मान हैं उनको भी फ़ौरी तौर पे गिरफ़्तार किया जाए। बहरहाल पुलिस ने जो अब तक कार्रवाई की है उस पर ये लोग मुतमईन हैं कि फ़ौरी तौर पे मुलज़मान को गिरफ़्तार किया गया। जो दीगर मुलज़मान हैं उनकी गिरफ़्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। बावजूद इस सब के धमकी आमेज़ कॉल्स इन्हें मौसूल हो रही हैं मुलज़मान की तरफ से कि अब अगर मज़ीद कार्रवाई इस पर करते हैं या FIR की पैरवी अगर ये लोग करते हैं, एक तो नुकसान भी हो गया इनका और धमकियां भी इन्हें दी जा रही हैं। SHO साहब से इस हवाले से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या इक़दाम उठाए गए हैं। बाकी मुलज़मान को गिरफ़्तार करना तो पुलिस का काम है, और वो कितना इफ़ेक्टिवली जारी है, कितनी देर में, वो हमें कोई अच्छी खबर दीगर मुलज़मान के हवाले से भी सुना रहे हैं। दिन दिहाड़े ये वाक़या होता है और सिर्फ मुलज़मान और मुदई पार्टी वहाँ पे मौजूद नहीं होती। वहाँ पे अहले दे होते हैं, ऐनी शाहिदीन होते हैं, जो गुज़रने वाले, क्योंकि ईद का ये दूसरा दिन है, चहल पहल थी, गो के दोपहर का ये वक्त था। वहाँ पे मौजूद थे कुछ लोग जिन्होंने बीच बचाव कराने की कोशिश भी की, और वो ये सब कुछ होता हुआ देख रहे थे। एक ऐनी शाहिद है, उनसे हम जानते हैं कि असल गलती है किसकी, जहाँ से ये सारा मामला शुरू होता है। और फिर भी जितनी बात बताई जा रही है इस जुर्म के पीछे, ये तो बहुत मामूली एक चीज़ है, ये सरासर एक अदम बर्दाश्त का एक वाक़या है। और SHO साहब से फिर इस पे बात करेंगे, लेकिन पहले हम एक और ऐनी शाहिदीन है, राहगीर थे वहाँ पे, उनसे हम बात करते हैं। जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम राइक राम। उधर ही रहते हैं आप भी? जी, ये जो वाक़या हुआ है ये बिल्कुल मेरा वहाँ पे डेरा है। अच्छा, बिल्कुल मेरे डेरे के नुक्कर पे हुआ है। अच्छा, आपके डेरे की कॉर्नर पे ये सारा वाक़या? जी जी। क्या उस दिन थोड़ा बताएं, आप वहाँ पे मौजूद थे, ईद का दूसरा दिन था? वहाँ पे पहले जो एक्सीडेंट वाला वाक़या होता है ना, वो थोड़ा सा तकरीबन को 150 फुट ना मेरे डेरे से आगे होता है। मैं वहाँ पे मौजूद नहीं हूँ, लेकिन वो शोर सुन के मैं बाहर निकलता हूँ। तो वहाँ से जब बाहर निकल के देखता हूँ, साफ ज़ाहिर है जब गांव वगैरह में लड़ाई होती है तो लोग इकट्ठे हो जाते हैं। लोग काफ़ी थे। मैंने वहाँ से मतलब पूछा लोगों से कि क्या मामला है। जो उनमें से एक मुलज़म है ना, उसका वो मैंने देखा है, वो गालियाँ निकालते हुए, पिस्टल लहराते हुए वहाँ से गुजर रहा था। अच्छा, ये जब ये एक्सीडेंट वाला वाक़या होता है, वो उसको लोग खींच के उधर ले गए हैं। इनको जो है वो मतलब जो बीच बचाव करवा के मामला वक्ती तौर पे रफ़ा दफ़ा हो जाता है। उसके बाद हम फिर दोबारा मैं अपने डेरे में आके बैठ जाता हूँ।
तो दोबारा तकरीबन आधा घंटा 15-20 मिनट एग्जैक्ट टाइम याद नहीं, दोबारा शोर वहीं पे मेरी नुक्कड़ पे दोबारा शोर होता है। मैं वो सुन के बाहर निकलता हूँ। आगे ये सारे मुलजमान जो हैं वो खड़े होते हैं, इनके मतलब असला इनके पास है, सरेआम, कोई छुपा हुआ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सरेआम असला लेके ये वहाँ पे खड़े। और ये मैं कोई बयानबाजी नहीं कर रहा हूँ, मैं ये हल्फन बात कर रहा हूँ। अगर कोई मुझे ये देख रहे हैं ये सब कुछ जी ये होते हुए, ये अच्छा मुझे कोई कहेगा ना कि ये आप हलफ पे भी बात करो, मैं ये हलफ पे भी बात करने के ठीक लिए। है। ये आप देखते हैं कि ये असला लेके ये लोग खड़े होते हैं जी। वहाँ। तो ये आपस में लोग उनको जो है समझा रहे होते हैं कि यार छोड़ो, ये बात नहीं, जिस तरह लोगों का काम होता है। मेरा भी उनके साथ अलग था, सारा कुछ था, हम मतलब पहले इकट्ठे जाहिर सी बात है एक गांव में उठने रहते बैठना। हैं। ठीक है। मैंने भी मतलब वहाँ पे निकला हूँ बाहर, मैंने कहा यार देखें आप, ये इतनी बड़ी बात नहीं है, तो आप इसको ख़त्म करें, छोड़ें, असले वाली तो ये बात नहीं है। अगर ठीक है मामूली लड़ाई हुई है वो हम बैठ के भी तस्वीर कर सकते हल हैं कर उसको। सकते ठीक हैं। वो आगे से मतलब स्टार्ट हो गए। मतलब आपके साथ भी अब उन्होंने- मेरे साथ भी मतलब वो उन्होंने गन्ने निकाल ली, वो जनाब वहाँ पे मुझे भी गालियाँ देना उन्होंने स्टार्ट कर दी। खैर वो लोगों ने मुझे भी पकड़, खैर साफ ज़रा जब मुझे गालियाँ दिए तो आप भी तैश में आए उस वक्त। ठीक है, हमने भी मतलब आगे से अपना जो भी था गालियाँ वगैरह दी, लोगों ने हमें भी पकड़ लिया, उनको भी पकड़ लिया। मेरा बिल्कुल डेरा था पास ही, लोगों ने हमें मतलब अंदर गेट में कर दिया, बाहर फायरिंग स्टार्ट हो गई। अच्छा, बाहर फायरिंग शुरू होगी, आप अंदर? हाँ जी, अंदर हुए हैं। पहले हवाई फायरिंग स्टार्ट हुई, हम बाहर निकले हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। बाहर निकलते ही वो उन्होंने स्ट्रेट फायर स्टार्ट कर दिया। अच्छा। उतनी देर में लियाकत को फायर लग जाता है टांग पे, ठीक है। साफ ज़ाहिर है वो हमारा रिलेटिव है, रिश्तेदार है, मेरा चाचू लगता है रिश्ते में, अच्छा, ठीक आपके है। रिश्ते में चचा हाँ, है? मेरे चाचू लगते हैं, ठीक है। मैं मतलब हम सब परेशान हैं, हम उसकी तरफ भागते हैं, सारा कुछ करते हैं। उतनी देर में जो खालिद है ना, उसके पास क्लाशन होती है, ठीक है। वो मतलब वो स्ट्रेट फायर करता है। वो इसका हमारी जो भाभी लगती है मेरी, उसको लग जाता है फायर, साथ ही उसके हस्बैंड को भी वो पिस्टल का फायर लग जाता है। हम खुद परेशान हो जाते हैं। उतनी देर फिर लोग और भी हमारे जो है रिश्तेदार सारे इकट्ठे हो जाते हैं। जब उनको पता चला कि लड़की को फायर लग गया, फिर उन्होंने मोटरसाइकिल भी वहीं छोड़े, अच्छा, सारा कुछ वहीं छोड़ के फिर वो भाग गए। भाग गए वहाँ पे आपने किसी को पकड़ने की कोशिश की है? सर, हमने पकड़ के मरना था पहले, हमारे दो तो उन्होंने मार दिए। जो भी उनके पास जाता वो स्ट्रेट फायर कर रहे थे, हम तो बच रहे थे उनसे। मतलब आप अपना दिफा कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि जद में ना आए। जी बिल्कुल ऐसे ही। तो वो वहाँ से भाग गया। वहाँ से हमने भाग 15 पे कॉल की है, 11 पे कॉल की है, ठीक है। तो उसके बाद फिर जब तक पुलिस वहाँ पे मौका पे पहुँची नहीं है, वो उनका हमारे घर से कुछ 400 फुट पे मतलब घर है, वहाँ से वो फायरिंग करते ही रहे। उन्होंने फायरिंग नहीं रोकी है। पता चल भी गया है ना उनको कि कत्ल हो गया, सारा कुछ हो गया है, वो फिर भी उन्होंने फायरिंग स्टार्ट रखी। ठीक है, मतलब ये फायरिंग करते गए हैं ये जी, पुलिस गई है तो उसके बाद उन्होंने फायरिंग रोकी। अब चूंकि आप जाहिर सी बात है पैरवी ये लोग कर रहे हैं इस केस की, आपको भी कुछ थ्रेट्स हैं इनमें से किसी ने? सर ये देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये सारे आदि मुलजिम हैं। इन पे किसी पे 302 की FIR है, किसी पे 302 की FIR है। कोई मंशियात फरोश है, ठीक है, डकैत है, ये सारा उनका रिकॉर्ड ये मेरे हाथ में, ठीक है। तो ये आदि मुलजिम है। उनको अब वो धमकी इस बात की लगा रहे हैं कि ये आप हमें पैरवी क्यों कर रहे हैं, हम पे आपने FIR नुकसान भी ठीक है होगा, जाने दें, छोड़ें इस बात की धमकी। आप कह रहे हैं अगर आपने नहीं रुकना है तो फिर हम जहाँ पे एक 302 की एक की भी वही सज़ा है, 2 की भी वही सज़ा है। बिल्कुल ठीक है। गुफ्तगू सुनी है, ये भी तकरीबन लगभग वही बातें हैं, लेकिन इनका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट था, क्योंकि ये ज़ाहिर सी बात है इन्होंने बीच बचाव कराने की कोशिश भी की, तस्फिया भी इन्होंने करवाने की कोशिश की फ़रीक़ैन में, लेकिन जब ये ना हो सका तो फिर जब ये आतिशी असला लेके मुलज़मान वहाँ पे पहुँचते हैं, तब भी ये वहाँ पे आके उनको रोकते हैं और उन्हें कहते हैं कि भाई ये मामला है, इसको बैठ के रिज़ॉल्व किया जा सकता है। और पहले भी हमने किए हैं इस तरह के मामला रिज़ॉल्व, लेकिन मुलज़मान बजाय इसके कि इनकी बात मानते, इन्हें ही गालम गलोच, इनके साथ ही बदतमीज़ी वहाँ पे शुरू कर देते हैं। तो ये फ़ौरी तौर पे इन्हें, जो वहाँ पे मौके पे लोग मौजूद थे, उन्होंने धकेल के अपने डेरे के अंदर किया। जैसे ही ये अंदर होते हैं और फिर फायरिंग शुरू हो जाती है, और फिर जिसके नतीजे में एक खातून जाँ बहक होती हैं, 2 लोग मज़लूम हैं।
FIR का इंदराज हो चुका है, मुलजमान उनमें से कुछ गिरफ़्तार हैं। SHO साहब हमारे साथ होंगे थाना रोशन वाला, उनसे हम इस हवाले से बात करेंगे कि ये वाक़या एक्चुअली पेश किस तरह से है और क्या ये इतनी ही सादा और इतनी मामूली बात पे इतनी ज़्यादा लड़ाई बढ़ी है, इतना झगड़ा बढ़ा है कि एक शख्स की जान चली गई, खातून की, और 2 ज़ख्मी हैं। SHO थाना रोशन वाला मोहम्मद इमरान मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम इस वाक़े से मुताल्लिक़ जानते हैं और इनसे चूँकि बकरा ईद थी, मंडी न्यामू आना जो है वो इनके थाने के एरिया में आती है, उससे मुताल्लिक़ भी जानेंगे। वहाँ पे भी कुछ वारदातें हुई हैं, अमन व अमान की सूरत हाल क्या रही है, इसमें हम इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया वक्त इनायत करने का। ये बताइएगा कि ये वाक़या ख़ास तौर पे जो न्यामू आना गाँव में ईद के दूसरे दिन पेश आता है, ये वाक़या है क्या, इतना ही ये अब मामूली बात पे ये सारा झगड़ा हुआ, ये थोड़ा बताइएगा इस हवाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल इसी तरह ही है। ये एक बच्चा था जो मोटरसाइकिल पर जा रहा था, दूसरी तरफ से जो उम्र दराज वगैरह जो मुलजमान थे ये गाड़ी में आ रहे थे। एक्सीडेंट हुआ, इनका अचानक हिट किया मोटरसाइकिल को। तो चूँकि ये एक ही गांव के रहने वाले थे, एक ही मोहल्ला के रहने वाले थे, तो उधर पहले बीच बिचाव हुआ इनके दरमियान, कोई गर्मी सर्दी हुई है, कोई गालम गलोच, कोई तबादला हुआ है इस तरह का। तो दैन उसके बाद उमर दराज ने, जो पता चला है कि उमर दराज ने फिर बाद में अपने दूसरे जो इसके हैं कज़न वगैरह, खालद वगैरह, उनको कॉल किया। तो उनकी प्रीवियस भी है लिटिगेशन, इनके साथ नहीं लेकिन समवन एल्स किसी और के साथ है। तो वो डेफिनेटली उनके पास असला था, तो असला लेकर वो उधर आए हैं। तो आते ही बस अदम बर्दाश्त का जो है ना एक नतीजा, ये उसका खमियाजा भुगतने हैं। वहाँ पे आपने लोगों को इंटरव्यू भी किया है, इंटेरोगेट भी किया है, इन्वेस्टिगेशन भी आपकी जारी है, मुलजमान जारी सी बात है, गिरफ़्तार भी हैं। वहाँ पे जब ये लोग पहुँचते हैं, इन्हें कोई दूसरी फरीक की तरफ से, मुदई पार्टी की तरफ से भी कोई धमकी, कोई इस तरह का मसला, कोई ऐसा कोई इशू सामने आता है, या फिर बग़ैर सोचे समझे आके ये सब कुछ शुरू कर देते हैं? अभी तक तो सर जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, अभी जो ग्राउंड रियलिटी सामने आ रही हैं, तो मुलजमान ही मसल्ला थे। तो बस उधर जो जब इनकी जैसे गांव में होता है ना तैश का जो पार्टीबाजी का सिस्टम होता है, वो भी एक फैक्टर और एक आंसर वो भी है इस सारे पहलू में। तो उधर बस ये एकदम अदम बर्दाश्त की वजह से ये इश्तियाल में आए हैं और फायरिंग हो गई है। फायरिंग के नतीजे में वो औरत बेचारी जो है वो जाँ बहक हो गई। 2 खातून जाँ बहक हुई हैं, 2 लोग जो है वो मजरूब हैं। वो मजरूब, जी बिल्कुल। उसका खामंद मज़र और उसका एक रिश्तेदार था लियाकत, वो उसको टांग में गोली लगी है, वो मजरूब है। अच्छा, आपको ये थाने रपट दर्ज करवाते हैं फौरी तौर पे, आप FIR जैसे ये कहते हैं उसके मुताबिक आप देते हैं FIR, फिर अब पुलिस की कार्रवाई बताइएगा कि पुलिस किस तरह से इस पर रिस्पॉन्ड? पुलिस जैसा कि वो रेस्क्यू 15 पर कॉल होती है, कॉल मसूल होने के बाद एक्टिव होती है पुलिस, डेफिनेटली वो इतला उसी के ज़रिए से मिलती है। तो जैसे ही गए हैं जी, उधर जाने के बाद जो मजरूब थे इनको फौरी थ्रू 1122 इनको हॉस्पिटल शिफ्ट करवाया गया ताकि इनका इलाज मुआवजा हो सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो औरत जो थी वो जाँ बहक होगी, रास्ता में वो डेड एक्सपायर्ड रिसीव्ड हुई है वो उधर हॉस्पिटल में, DHQ में। तो दूसरा जो थे मुलजमान मौका पर मोटरसाइकिल्स वगैरह छोड़कर भाग गए थे। उनके फिर जो डेरे थे, उनके घर थे, उधर रेड किया प्रॉपर। तो जो उनका माल मवेशी था वो हमने कब्ज़ा में लिया था, जो एक तरीक़ाकार चलता है पुलिस का। तो इसी तरह फिर उस रात तो ये मुलजमान, उसके बाद मुदई ये मज़र की मदयत में ये FIR दर्ज की गई है। 6 कस नामजद हैं और 3 मेरे ख्याल नामालूम है जिनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है। उनकी तलाश करते रहे पूरी रात और सीनियर ऑफिसर्स जो थे उनसे रहनुमाई लेते रहे हैं। ख़ुसूसन CPO साहब बिल्कुल ऑनलाइन रहे, मेरे साथ टच रहे हैं और उनमें लम्हा ब लम्हा हम आगाह करते रहे हैं कि जी हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो टेक्निकल सोर्स वगैरह इस्तेमाल करते हुए फिर इनको वेरी नेक्स्ट डे सर हमने 2 बंदे जो थे नामजद FIR, जिनमें से एक शाहनवाज और दूसरा बिलाल, इनको फिर हमने गिरफ़्तार किया, वो हमारे पास लॉकअप में है। अच्छा, ये 2 मुलजमान गिरफ़्तार हैं। अच्छा, ना परेशानी वाली बात ये है मलिक साहब के मुलजमान जो मफरूर हैं वो इस वक्त इन्हें धमका रहे हैं। ख़ास इनका पहले भी नुकसान हो चुका है, अब मुद्दईयान को धमकाया जा रहा है। इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ इक़दाम उठाए हैं? उनकी गिरफ़्तारी के तो ऑफ द रिकॉर्ड हमारी बात हुई है कि बहुत करीब हैं आप।
हाँ जी, इंशाल्लाह जी, वो जो बंदे एट लार्ज हैं वो जल्द ही इंशाल्लाह हम उन्हें कैफरे करदार तक भी पहुँचाएंगे, गिरफ़्तार भी करेंगे। और इनकी हिफाजत के लिए सर मैंने प्रॉपर जो मोबाइल है वो उधर डिप्यूट करवा रहे हैं जी प्लीज़, ताकि खुसूसन जो गवाह हैं, जो एविडेंस है इनकी, वो सेफ़ रहे जी। बिल्कुल सही। अच्छा, अब मुलज़िमान से मुताल्लिक़ ज़रा बताइएगा कि ये पहले भी रिकॉर्ड याफ्ता हैं, किस तरह के जराइम में ये पुलिस को मतलूब रहे हैं माजी में, इस हवाले से बताइएगा। जी प्लीज़, ये इनमें से खालिद जो है इसके ऊपर पहले भी कत्ल का ये हो चुका है कत्ल, और इनमें से जो शेर ज़मान और रफ़ाना है ये भी रिसेंटली कत्ल और मनशियात में ये रहा है। और इसी तरह एक दूसरा शाहनवाज जो हमने गिरफ़्तार किया हुआ है, ये डकैती वगैरह क्या है रिकॉर्डेड, ये इनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है मुलज़मान का। पहले भी जराइम पेशा ये लोग हैं, पुलिस को मतलूब रहे हैं, ज़ाहिर सी बात है ट्रायल्स होते हैं, फिर बेल पे ये लोग अक्सर बाहर होते हैं, तो ये एक मामला है। अच्छा, अब इसमें ख़ास तौर पे जो अहले दे हैं उनका किरदार क्या रहा है इस सारे मामले के दौरान? किसी ने इनकी सुलह तस्फिया करवाने की कोशिश की जब ये सारा मामला हुआ है, ख़ास तौर पे गाड़ी ने हिट किया है बाइक को उस दौरान? जी बिल्कुल, जब ये गाड़ी इसने उमर दराज को हिट किया था उस लड़के ने, तो उसके बाद जैसे मैंने आपसे पहले रिक्वेस्ट की थी, एक ही मोहल्ला के रहने वाले थे, तो ये खालिद वगैरह आए थे इधर से, जो मदई पार्टी इधर से राय इकराम, इन्होंने बीच बचाव करवाने की कोशिश की, लेकिन उसी दौरान ये इश्तियाल में आए हैं। और ज़्यादातर तो सर इसको हम जैसे पंजाबी में कहते हैं रंगबाजी, उसी का नतीजा सर ये निकलता है कि जी मैं वो कह लें कि पहले भी इस तरह के मामला, अकॉर्डिंग टू मुलज़मान, कि जी पहले भी इस तरह के मामला हम फेस कर चुके हैं। तो इसी तरह का सर ये अदम बर्दाश्त का सर ये नतीजा है एट द एंड। सरीहन अदम बर्दाश्त का ये वाक़या है। एक मामूली एक तल्ख़ कलामी, एक मामूली एक वाक़या होना, गाड़ी को हिट कर दिया था फ़ौरी तौर पे। जब मुद्दईयान कह रहे थे कि ये जितना भी आपका नुकसान हुआ है वो हम भरेंगे, पूरा करेंगे हम, तस्फिया हो चुका था इस मामले का, तो दोबारा इस मामले को बढ़ाने की ज़रूरत ही क्या थी, इस पे ये सब कुछ होना। और फिर अब ज़ाहिर सी बात है जब ये वाक़या हो गया है उसके बाद नुकसान मुद्दईयान का तो हो गया, एक ख़ातून जाँ बहक हो गई, दो लोग मज़रूब हैं इसमें, लेकिन एक नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान मुलज़मान का भी हुआ है। अब जो लोग गिरफ़्तार हैं या जो मफ़रूर हैं वो अपने घरों से मफ़रूर हैं, पुलिस उनकी तलाश में है, मुजरिम बन चुके हैं वो एक तरह से। जो चंद रोज़ पहले ठीक है, पहले भी पुलिस को वो मतलूब रहे हैं, लेकिन अपने घरों में एटलीस्ट वो लोग रह रहे थे। तो ये एक ऐसी ज़िंदगी और एक ऐसा सफ़र उनके लिए शुरू हो चुका है जो शायद कभी ख़त्म ना हो, उनके लिए, उनकी फैमिलीज़ के लिए, उनके बच्चों के लिए। वक्त था, सिर्फ उस वक्त थोड़ा बर्दाश्त किया जाता और वो 10-15 मिनट किसी तरह से निकाल लिए जाते तो मामलात किसी और तरफ होते। SHO साहब हमारे साथ हैं, थाना रोशनवाला की हदूद में ये वाक़या पेश आया। मलिक इमरान साहब हैं, उनसे हम ये जानते हैं कि ओवरऑल सूरत हाल क्या रही जराइम की, ख़ास तौर पे न्यामुआना मंडी जो है वो चूँकि इनके एरिए में आती है, तो वैसे तो पुलिस बड़ी मुस्तैद रही इन दिनों, लेकिन फिर भी चूँकि कैश की हैंडलिंग हो रही होती है, जानवर आ जा रहे होते हैं, तो इक्का दुक्का वाक़यात और फिर उन पे कार्रवाई पुलिस की। क्या सूरत हाल रही इस दफ़ा जराइम की? न्यामुआना एक बड़ी वारदात रिपोर्ट हुई है, थोड़ा इस हवाले से बताइए। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, ओवरऑल जो इसका प्रीवियस जो रिकॉर्ड है न्यामुआना मंडी का, जैसे कि आपको पता है कि इधर करोड़ों नहीं अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन हो रही है, जानवरों की लेन देन हो रही है। और जो व्यापारी हजरात हैं डेफिनेटली वो कस्टोडियन हैं पैसे के, और जो गाहक हैं वो लेकर हर एक बंदे के पास एवरेज जो है वो 4-5 लाख के करीब होता था। हज़ारों की तादाद में इधर लोग आते थे। पूरा फैसलाबाद बिग सिटी है, ये 3rd बिग सिटी पाकिस्तान का, तो पूरे फैसलाबाद का रुझान जो था इधर न्यामुआना मंडी की तरफ था। तो CPO साहब ने एक प्रोग्राम तश्कील दिया था, स्पेशली मोटरसाइकिल स्क्वाड तश्कील दिए थे, फिर एलीट फोर्स और इसी तरह डॉल्फिन और नाकाबंदी पॉइंट्स लगाए थे इसके इर्द गिर्द अराउंड द क्लॉक, ताकि ये मंडी जो है ये सिक्योर है। लेकिन फिर भी अनफॉर्चुनेटली रकबा बहुत ज़्यादा था मंडी का, तकरीबन कोई ये रेडियस वाइज 2 किलोमीटर के एरिया पर फैली हुई ये मंडी थी। तो एक वाक़या अनफॉर्चुनेटली इधर हो चुका था, हुआ है, तो इंशाल्लाह वो भी हम ट्रेस कर रहे हैं, करीब हैं वो, जल्द ही आपको इंशाल्लाह वो गुड न्यूज़ देंगे। तो बेहतर अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है जी। पहले तो ये करोड़ों में भी गई हुई है वारदात, जो 2-3 करोड़ में हाजी
हाजी यूनुस साहब हैं, को प्रीवियसली उनके पास 2-3 साल पहले उनका वकूआ हुआ था। फिर कार लिफ्टिंग के लिहाज से, मोटरसाइकिल लिफ्टिंग के लिहाज से हम अल्हम्दुलिल्लाह सेफ़ रहे हैं जी। सफ़ेद पारचात में हमने इधर फोर्स लगाई हुई थी, एंटी कार लिफ्टिंग वाले इधर डिप्यूट थे। ओवरऑल जी बेहतर रहा है जी। बेहतर रहा ओवरऑल। अगर बात की जाए ख़ास तौर पे ईद के दिनों में, बकरा ईद के दिनों में करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शंस, लेन देन के मामलात हो रहे होते हैं इस एरिया में। वाक़या ये अफसोसनाक पेश आया न्यामुआना गांव में, जिसके नतीजे में ख़ातून जहाँ बहक हुई और 2 अफराद ज़ख्मी हुए। इन दिनों में ख़ास तौर पे जब गर्मी मौसम की शिद्दत होती है तो इस तरह के वाक़यात में इजाफ़ा देखने को मिलता है। हम बहुत सारे प्रोग्राम्स इस पे कर भी चुके हैं कि ख़ास तौर पे अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो उसको टैकल किस तरह से करना है, इर्द गिर्द के लोगों की ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, हम एक अच्छे शहरी होने की हैसियत से क्या कुछ ऐसा है कर सकते हैं। फ़ौरी तौर पे पुलिस को मुत्तला करना है, उन लोगों को जो पार्टीज़ हैं, फ़रीक़ैन हैं, उनको किस तरह से तस्फ़िये की तरफ लेके आना, ना कि कोई इस तरह का खुदा न खास्ता वाक़या पेश आ जाए जिसमें किसी की जान चली जाए या कोई ज़ख्मी हो जाए। आज के इस प्रोग्राम से इतना ही। सबीउल हसन ख़ान को टीम मुजरिम कौन समेत इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।